Hello everyone, welcome to part 72 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our pathophysiology and metabolism in disease part of the syllabus. तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन. In hyperthyroidism, which metabolic sense is most characteristic? Option A, increased basal metabolic rate and oxygen consumption. Option B, decreased lipolysis and increased fat accumulation. Option C, increase glycogen synthesis and reduce energy expenditure. Option D, decrease protein turnover and nitrogen balance. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन. हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है थायराइड हार्मोन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाना. बाकी थायराइड हार्मोन आपका ट्राइयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन जो होता है they enhance mitochondrial function and uncoupling protein expression, which may lead to increasing in basal metabolic rate and heat production. उसके वजह से weight loss, muscle wasting, tachycardia and hyperthermia जैसा इश्यूज देखा जा सकता है. और हाइपोथायरॉयडिज्म में इसका रिवर्स देखा जा सकता है, मतलब वेट गेन, ओबेसिटी एक्सेट्रा भी देखा जा सकता है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका. इन विच मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज द रेशियो ऑफ NADH NAD प्लस इंक्रीज लीडिंग टू लैक्टिक एसिडोसिस? ऑप्शन ए, एल्कोहलिक लिवर डिजीज. ऑप्शन बी, हाइपोथायरॉयडिज्म. ऑप्शन सी, मारस्मस. ऑप्शन डी, डायबिटीज इंसिपिडस. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एल्कोहलिक लिवर डिजीज. ज़्यादा एल्कोहल लेने की वजह से NADH का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म जो होता है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस और एसिटाइल डिहाइड्रोजनेस की मदद से होता है, जो NADH लेवल को बढ़ा देता है. बाकी हाई NADH और NAD प्लस की वजह से आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस इफेक्ट हो सकता है. उसकी वजह से आपका हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है. देन आपका लैक्टिक एसिडोसिस और फैटी लिवर डिजीज हो सकता है. This contributes to hepatic steatosis, fibrosis और cirrhosis हो सकता है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. In primary hyperaldosteronism, also called Cohen's syndrome, which electrolyte disturbance is most characteristic? Option A, hyperkalemia and metabolic acidosis. Option B, hypokalemia and metabolic alkalosis. Option C, hypercalcemia and respiratory alkalosis. Option D, hypernatremia and metabolic acidosis. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, hypokalemia and metabolic acidosis. एक्सेस एल्डोस्टेरोन की वजह से रिनल सोडियम रिटेंशन इंक्रीज हो सकता है एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन भी इंक्रीज हो सकता है, which may cause hypokalemia. Increased hydrogen ion excretion in urine lead to metabolic alkalosis, which may lead to hypertension, muscle weakness, cardiac arrhythmias, etc. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does liver cirrhosis cause hypoalbuminemia? Option A, increase albumin excretion in urine. Option B, decrease albumin synthesis due to hepatocyte dysfunction. Option C, increase breakdown of albumin by the kidneys. Option D, increase albumin synthesis due to portal hypertension. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डिक्रीज एल्बुमिन सिंथेसिस ड्यू टू हेपाटोसाइट डिसफंक्शन. सिरोसिस जो होता है इट कॉजेस हेपाटोसाइट डैमेज impairing the albumin production by the liver. Hypoalbuminemia leads to decrease oncotic pressure, result in ascites. Ascites मतलब जो पेट और पाव फूल जाता है जो. Then peripheral edema, oral effusions, and other consequence of cirrhosis like hyperbilirubinemia and coagulopathy and portal hypertension as well. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which metabolic abnormality is characteristic of mitochondrial disorder? Option A, lactic acidosis and decreased ATP production. Option B, hyperglycemia and hyperinsulinemia. Option C, increased
कीटोजेनेसिस, ऑप्शन डी इंक्रीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिडोसिस एंड डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो होता है उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इम्पेयर होता है, which may lead to decreased ATP production, accumulation of lactic acid due to more reliance on anaerobic metabolism। देन आपका मायोपैथी मतलब मसल का जो डिस्फंक्शन होता है, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन एंड एक्सरसाइज इंटॉलरेंस एक्सेट्रा देखा जा सकता है। इसका एक एग्जांपल है आपका मिलस सिंड्रोम। मिलस सिंड्रोम मतलब माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस एंड ओक लाइक एपिसोड्स। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मल्टीपल मायोलोमा व्हिच मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन डी हाइपोफॉस्फेटेमिया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया। मल्टीपल मायोलोमा जो होता है इट लीड्स टू ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेशन। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब जो हमारा बोन में सेल होता है बाय मायोलोमा सेल्स, which may increase bone reabsorption and causing hypercalcemia. The symptoms involved in myeloma is fatigue, nephrocalcinosis, then constipation, confusion etc. के अलावा ब्रेजॉन्स प्रोटीन और एनीमिया और रिनल डिस्फंक्शन जैसा इश्यूज भी देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the most likely cause of metabolic alkalosis in hospitalized patient? Option A severe diarrhea, option B salicylate toxicity, option C loop diuretic therapy, option D lactic acidosis। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लूप डायरेटिक थेरेपी। लूप डायरेटिक जो होता है मतलब आपका लूप डायरेटिक का एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, फ्यूरामाइड, बुमेटोनाइड एक्सेट्रा। This may cause increased renal hydrogen and potassium loss leading to hypokalemia, metabolic acidosis etc. इसके अलावा vomiting, hyperaldosteronism etc. भी देखा जा सकता है। इसको मैनेज करने के लिए हम लोग पोटेशियम और क्लोराइड डिप्लीशन का मदद लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In Wilson's disease, which metabolic defect lead to hepatic and neurological symptoms? Option A, impaired ceruloplasmin synthesis. Option B, excess intestinal copper absorption. Option C, defective copper excretion into bile. Option D, decreased हेप्सिडिन लेवल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डिफेक्टिव कॉपर एक्सक्रीशन इनटू बाइल। विल्सन डिजीज जो होता है ये कॉपर टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है। मैंने ये पहले भी बोला था, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ये था। विल्सन डिजीज में ATP7B जो हमारा जीन होता है वो म्यूटेशन होता है उसका, और विल्सन डिजीज में कॉपर एक्यूमुलेशन होता है इन द लिवर, ब्रेन एंड कॉर्निया। लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है, मतलब कॉपर एक्यूमुलेशन की वजह से भी विल्सन डिजीज का जो सिम्टम्स होता है वो देखा जा सकता है, और विल्सन डिजीज होने की वजह से भी कॉपर एक्यूमुलेशन देखा जा सकता है। इसका सिम्टम्स होता है हेपेटिक फेलियर, न्यूरोसाइकेट्रिक सेंसेस एंड फ्लेसर्स रिंग का फॉर्मेशन देखा जा सकता है जो कॉर्निया में होता है हमारा। और इसका डायग्नोसिस जो होता है ये लो सेरुलोप्लाज्मिन और हाई यूरिनरी कॉपर डायग्नोसिस से देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient with untreated congenital adrenal hyperplasia due to 21 hydroxylase deficiency is most likely to present with option A hypokalemia and hypertension, option B hyperkalemia and hypotension, option C hypernatremia and hypoglycemia, option D hypocalcemia and metabolic acidosis। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोटेंशन।
ये जो 21 हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम होता है, इसका डेफिशिएंसी की वजह से कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, एंड दिस में कॉज हाइपोटेंशन ड्यू टू लो एल्डोस्टेरोन। अब तो रस सिस्टम जो होता है, रेनिन, जियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन का जो सिस्टम होता है, ये तो जानते ही होंगे, जो फीडबैक प्रोवाइड करता है, रेगुलेट और ब्लड प्रेशर। और हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है ड्यू टू लो पोटेशियम एक्सक्रीशन एंड सॉल्ट वेस्टिंग क्राइसिस जैसा सिम्टम्स भी देखा जा सकता है। इसके वजह से एंड्रोजन सिंथेसिस भी बढ़ सकता है, विच में कॉज विरिलाइजेशन इन फीमेल्स, जो एक का इशू होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। विच मेटाबॉलिक डी-अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम TLS? ऑप्शन है हाइपोयूरेसेमिया, ऑप्शन बी हाइपरफॉस्फेटेमिया, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, ऑप्शन डी हाइपोकैलेमिया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हाइपरफॉस्फेटेमिया। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जो होता है, इट ओकर्स ड्यू टू रैपिड ट्यूमर सेल लाइसिस। लाइसिस मतलब जो डेथ होता है ट्यूमर सेल का, रिलीजिंग इंटरसेलुलर कंटेंट्स। Classic metabolic signs during tumor lysis syndromes include hyperuricemia due to purine breakdown, purine जो हमारा प्रोटीन होता है, then hyperphosphatemia due to cell lysis मतलब cell death, then hyperkalemia, then आपका hypocalcemia due to phosphate binding with calcium। और इसके वजह से acute kidney injuries देखा जा सकता है। तो आज का डिस्कशन में इतना ही था फ्रेंड्स। होप यू लाइक दिस सेशन, और आपको ऐसे भी क्वेश्चंस और भी देखना है तो ये बुक आप कंसीडर कर सकते हो। इसका कुछ डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।